Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I would be discussing about sexual reproduction. I would be discussing about a brief overview about sexual reproduction that will be discussed in detail in the future videos as it is separately being discussed under the topics of sexual reproduction in flowering plants and human reproductive system. So these both chapters will discuss detailed overview of this topic, but in this video I would be giving just a brief idea that is being given in the chapter 1 of your NCERT textbook. So let us start from what is sexual reproductions. It is the production of male and female gametes and their fusion leading to the formation of a zygote. So first thing that differentiate it from the asexual reproduction is fusion of gametes, which lead to the formation of zygote. There is no fusion of gametes taking place in the asexual reproduction. Next thing is that sexual reproduction is divided into three phases. The first one being the juvenile phase, which is the growth phase of the organisms. In plants, this phase is also known as vegetative phase. Okay, ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल्स हैं उनके अंदर इसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है और प्लांट्स के अंदर इसको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है. तो इस फेज के दौरान पर मोस्टली क्या हो रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे वाले फेज के लिए, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. Next phase is the reproductive phase. It is basically the end of the juvenile phase when the reproductive organs are prepared to function properly. During the reproductive phase, the organism or the plant reproduces with its fullest capacity. Next phase is the senescent phase. Senescent phase is marked by the old age. During this phase, metabolism of the organism is very slow. That is why it is not capable of reproducing and it is a sign of old age. Next, hormones play a very vital role in the transition of an organism in all the three phases. तीनों फेज के अंदर हॉर्मोन्स का अपना रोल अलग होता है. कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रिपेयर करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, और जो सेनेसेंट फेज होता है उसके अंदर सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं. दूसरी चीज़ में हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं. तो एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल में ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि हम पी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो वो प्लांट्स होते हैं. और बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म कर देते हैं. इसमें हम अनियन का एग्जांपल लेते हैं. और एनुअल पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 साल से ज़्यादा में या काफ़ी टाइम बाद अपनी लाइफ साइकिल को ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो पेरिनियल प्लांट में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, बनाना का. ऑलराइट, तो ये जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की या 2 साल की होती है, उनके बीच में जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज के बीच में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं. पर जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि when the which phase is occurring. You cannot differentiate it in the perennial plants. Now in the placental mammals, जिनके अंदर प्लासेंटा होती है, ऐसे mammals के अंदर there comes cyclic changes in the activity of ovaries, in the activity of their hormones and in the activity of their accessory ducts. जैसे कि accessory ducts में fallopian tubes आ जाते हैं in the females and seminiferous tubules inside the males and many other accessory ducts are coming, which we will discuss in future chapters. So these all ovaries, hormones and accessory ducts undergo cyclic changes during the reproductive phase. Okay, reproductive phase के दौरान इन सारे के सारे organs के अंदर cyclic changes होंगे, hormones के अंदर और accessory ducts और ovaries के अंदर. So in non-primate animals like cow and pig, this cyclic change is known as cow, pig and many more. This cyclic change is known as oestrus cycle. And in mammals like us, in primates like human beings, this is known as menstrual cycle. Is it clear? These cyclic changes occur in all the organisms, placental mammals,
Okay, in all the placental mammals, these cyclic changes are occurring and they are known as oestrus cycle in non-primates and menstrual cycle in the primates. Now there are two type of breeders. One is the seasonal breeder, which will breed in a particular season according to the adaptability of its own self. Okay, so it may reproduce in the wild condition or in the natural condition, like some organisms reproduce during the warm climate, some reproduce during the cold climate according to their adaptability, like horses are seasonal breeders, whereas continuous breeders exhibit all the cycle or these cycles, means the reproductive cycles, as long as they are in the active reproductive phase. कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स वो होते हैं जो जब चाहें तब अपना रिप्रोडक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक वो एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स आर कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स. Let's move on. Now there are some unusual flowering phenomenon seen in bamboo. In bamboo, flowers are seen only once in 50 to 100 years, and after the flowering the bamboo plant dies. तो उसका एक ही मोटो होता है कि वो फ्लावर्स को बॉर्न करे, 100 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, एंड आफ्टर दैट इट डाइज. इट हैज़ ओनली दिस मोटिव ऑफ इट्स लाइफ कि वो एक बार फूल खिला सके अपने ऊपर. उसके बाद आता है स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, जिसको नील कुरंजी भी बोलते हैं. इट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स. ओके, इसका थोड़ा कम टाइम में फ्लावर्स आ जाते हैं, बट इट ऑल्सो डाइज आफ्टर फ्लावरिंग. It is mass covering the hilly tracts of South Indian hills. And last time इसको जो flowering हुई थी वो 2018 में हुई थी. Next would be seen in 2030. I hope you guys could go and watch that flowering in 2030. I wish the same for me too. Now there are events in sexual reproduction. So the events are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. The pre-fertilization events are divided into gametogenesis and gamete transfer. गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा. गैमीट ट्रांसफ़र के अंदर क्या होगा, जो मोटाइल गैमीट है जो कि मेल गैमीट होता है उसको फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र करना होगा. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. नाउ लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस है, गैमीट्स का प्रोडक्शन है. गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स का होते हैं हैप्लॉइड सेल्स होती हैं. ऑर्गेनिज्म माइट बी डिप्लॉयड बट इट्स गैमीट्स विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड. Okay, how do these haploid gametes form? It happens by meiosis, which is a reductional division. This is the organism. We have discussed about this in our previous video. If you have not watched it yet, then please go and watch it, and then you would be clear about this concept. Now about the gametes, there is something that there may be homogametes, like in Chlamydomonas. होमोगैमीट्स आर द गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं. देन देयर आर हेट्रोगैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर. लाइक दिस लार्ज वन इज द फीमेल गैमीट एंड दीज वंस आर द मेल गैमीट्स. नाउ द लार्ज फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल. दिस इज नॉन मोटाइल and it is large because it is having abundant food material for the development of the embryo, and these male gametes are motile. Their role is only fertilization of the egg. Now sexuality in organisms. There are organisms divided into bisexual and unisexual organisms. Bisexual or homothallic or monoecious. Monoecious term is used for plants. Bisexual term is basically used for plants and animals both. So when both male and female organisms when both male and female reproductive organs are present on the single organism or the single plant, then the situation is known as bisexual or monoecious or homothallic. There are organisms which are known as hermaphrodites, which show bisexual conditions. Means the male and female reproductive organs are present on a single animal, like in snails, in earthworms, and some other worms too, and yeah, starfish, echinoderms also. So these are the example of
hermaphrodites. Now there are unisexual organisms which have heterothelic thallus or dioecious situation, when male and female reproductive organs are found in opposite organisms और ऑन डिफरेंट प्लांट्स. जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में या अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं. तो ये मोस्टली ह्यूमन बींग्स में या और भी बहुत सारे एनिमल्स में आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह की सिचुएशन मिलती है. सो दिस इज अ plant which is showing female thallus, so this is the heterothelic condition, heterothallic condition, where the male and female reproductive organs are present on different opposite thallus. So the female part is known as archegoniospore and the male part is known as antheridiopore. And this is the diagram of earthworm which is having male reproductive organ as well as the female reproductive organ. But there is one thing about the earthworm, that the earthworm will not use its own sperms to fertilize its own eggs. It will always use the sperms of another earthworm and it will give its sperms to that another earthworm from which it will be taking the sperms. Okay, so basically cross fertilization is occurring here. It will not use its own sperms to fertilize its own eggs. Now in sexual reproduction there is cell division occurring during gametogenesis. So this I have discussed about in my previous video. Please go and watch it if you have not yet watched it. Organisms can have diploid or haploid body. Diploid body is found in gymnosperms, angiosperms and all other animals like us. We are having a diploid body. We have 2 N chromosomes. Haploid body has N chromosomes. Haploid body is found in Monera, algae and bryophytes. All organisms may have haploid or diploid bodies, but their gametes will always be haploid. Gametes हमेशा haploid रहेंगे. अगर body diploid है, if the body is diploid, then meiosis will occur and the haploid gametes will be formed. And if the body is haploid, means it has only N chromosomes, then mitosis will occur. Please be clear about this concept. And haploid gametes will be formed. Sexual reproduction के अंदर हमेशा haploid gametes ही यूज होंगे. N ही N के साथ फ्यूज करेगा. 2N 2N के साथ फ्यूज नहीं करेगा. 2N into 2N क्या बनाएगा? 4N. ये impossible है. So always haploid gametes will fuse with haploid gamete and it will form a 2N diploid situation. Now, or you can do this. Okay, gametes in haploid organisms are produced by mitosis and diploid organisms by meiosis. You can just pause and take a screenshot of all the notes that I have written in these slides. Okay, you just focus on what I am teaching. In diploid organisms, gamete mother cells called meiocytes are present that undergo meiosis, after which one set of chromosomes is transferred into each gamete. तो इसका मतलब ये है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती हैं? मियोसाइट्स होती हैं या फिर गैमीट मदर सेल्स होती हैं. वो गैमीट मदर सेल्स क्या करेंगी? गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगी. गैमेटोसाइट्स में स्पर्म को प्रोड्यूस जो करती हैं उनका नाम होता है स्पर्मेटोसाइट्स. एंड जो ओवा को प्रोड्यूस करती हैं उनका नाम होता है oocytes. सॉरी, दे आर नोन एज oocytes. ऑलराइट, तो ये स्पर्म बनाएंगी और ये बनाएंगी एग. ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द गैमीट ट्रांसफर. गैमीट ट्रांसफर को होने के लिए हमेशा किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मोटाइल गैमीट है. मेल गैमीट इज मोस्टली मोटाइल और उसको फिजिकली कांटेक्ट में आने के लिए एग के साथ उसको कोई मीडियम चाहिए. सो मोस्टली द मीडियम इज वाटर इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. नाउ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, वेयर एज हमने पढ़ लिया फीमेल गैमीट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है. नाउ गैमीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी. एंड क्योंकि ज़्यादातर मेल गैमीट्स फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक रीच करने के लिए, इसलिए मेल गैमेट्स जो होते हैं वो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं. दे आर प्रोड्यूस इन थाउजेंड्स. इन वन इजैकुलेशन थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस टू फर्टिलाइज अ egg, but only one is capable of doing that fertilization.
Now there is pollination process that is occurring in the plants. The event of transfer of pollen grains which are carrying the male gamete to the stigma where they germinate into the pollen tube and reach the ovule and release the male gamete near the egg. So there is this pistil structure you will study about in the next chapter, जिस पर pollen grains आकर स्टिक कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एरिया होता है. अगर ये इसी की स्पीशीज़ के होंगे तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे. यहाँ पे बल्ज्ड पार्ट होता है इसके बॉटम में जिसमें प्लासेंटा प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक होता है अंदर. एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट होता है, तो ये इस एग तक रीच करेगा और यहाँ पर अपने मेल गैमीट्स को डिपॉजिट करके एग को फर्टिलाइज कर देगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज pollen pistil interaction. You will study about this in the next chapter. Okay, so this is the pollen pistil interaction. Now the gamete transfer have happened इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स जिनके अंदर दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही जगह पे है तो उन्हें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं. बाकी जिन प्लांट्स में मोनोशियस कंडीशंस है, जिन प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल कंडीशन है कि एक प्लांट पे मेल है एक प्लांट पे फीमेल है, दोनों अलग अलग प्लांट्स पे हैं, तो उनको एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है या कोई इंसेक्ट भी हो सकता है. नाउ फर्टिलाइजेशन के बारे में बढ़ते हैं. फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है उसको सिनगैमी बोला जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, न्यू इंडिविजुअल या फिर जाइगोट. पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब फीमेल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, वो अपना फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप अपने एग्स को डेवलप करा लेती है एक नए ऑर्गेनिज्म में. So it happens in lizards, honeybees and rotifers. Now the fertilization can be external or internal. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लीजिएगा. मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताती हूँ. फिशेस के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. Fishes what they do is they will produce their eggs and sperms in the water in a very large quantity and they will fertilize on their own. Fertilization is also occurring inside the water, not in the body of the fishes. So for this there must be synchronicity in the timings of release of eggs and the sperms. Internal fertilization ह्यूमन बींग्स में होती है और बाकी प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, प्लासेंटल एनिमल्स में होती है, जिसके अंदर क्या होगा, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है. मेल गैमीट विल कम टू द फीमेल गैमीट एंड फर्टिलाइज इट एंड द ज़ाइगोट विल बी डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द female. Okay, egg is formed in female where the male gamete come to fertilize it. Okay, so here what happens, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही बल्क में प्रोड्यूस होंगे, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग हमेशा एक रहेगा, एग विल बी वन एंड स्पर्म्स विल बी इन बल्क. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा. अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है. विच इज़ द वाइटल लिंक विच इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़. स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कौन एक वाइटल लिंक होता है, वो होता है जाइगोट. जब तक जाइगोट नहीं बनेगा आगे ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा और आगे स्पीशीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाएगी. तो हम सब ने अपने आप की जो लाइफ स्टार्ट की है वो जाइगोट की तरह ही स्टार्ट की है. And zygote is the connecting link for the continuity of the species. एक species को आगे बढ़ाने में यही connecting link होता है. अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, उनके जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो भी एक्सटर्नली ही होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर और फीमेल और पेरेंट. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइक इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर primates and non-primate mammals, the development will occur inside the body of the female. Development of zygote depends on the life cycle of organism and the environment around it. अब ओवीपैरस विवीपैरस एनिमल्स भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जाइगोट फॉर्म हो गया इनसाइड द बॉडी. एग्स कुछ क्या करेंगे, अपने एग को डेवलप करेंगे इनसाइड द बॉडी और कुछ क्या करेंगे, एग को प्रोड्यूस कर देंगे बाय रैपिंग इट इन अ कैलकेरियस सेल. पोस्ट फर्टिलाइजेशन एज इन फंजाई एंड एल्गे, जाइगोट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का आगे, तो फंजाई और एल्गे में जाइगोट बनने के बाद जाइगोट अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा और रेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए. ठीक है, और वो जो सिस्ट होगी वो ऐसी होगी कि वो उसको डैमेज और डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी.
In organisms having haplontic life cycle, zygote undergo meiosis and forms haploid spores that further grow into haploid organisms. ठीक है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी. ठीक है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे. बट अभी आप बस ये देख लीजिए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो हैप्लॉन्टिक जाइगोट बनता है वो मियोसिस अंडरगो करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा. ठीक है, जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉइड है, दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दोज हैप्लॉइड स्पोर्स विल फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स वाले कौन कौन हो गए, जैसे कि मोनेरा में आ गए, मोनेरा इज हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, और लोअर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक, तो उनके अंदर ये सब पाया जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, दो प्रोसेसेस होते हैं, एक सेल डिवीजन का होता है, एक सेल डिफरेंशिएशन का होता है. सेल डिवीजन का मेनली काम ये होगा कि वो सेल के नंबर को इंक्रीज करेगी, और सेल डिफरेंशिएशन का काम ये होगा जब सेल्स बहुत सारी बन गई हैं तो उनको एक एक काम दे दिया जाता है. ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ को वर्क असाइन कर दिया जाता है, वो स्पेशलाइज ऑर्गन्स में फॉर्म हो जाती हैं और बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस को करती हैं. ठीक है, अब ओविपैरस वीविपैरस के बारे में यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टडी लेटर. आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवर हियर. जाइगोट जब डेवलप होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, फीमेल पेरेंट, तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग जो भी है वो उसको ले कर देगा अपनी बॉडी से बाहर. एग कवर होगा कैलकेरियस सेल से एंड आफ्टर सर्टेन इंक्यूबेशन टाइम, कुछ टाइम के बाद, जिसमें जैसे हैन है, हैन अपना एग ले करने के बाद उसको इंक्यूबेट करती है, उसको मूव करती रहती है, वार्मथ प्रोवाइड करती रहती है, जिससे कि जो यंग वन है एग के अंदर वो अच्छे से डेवलप हो जाए, और कुछ इंक्यूबेशन टाइम के बाद द यंग वन हैचेस आउट. एंड इन विविपैरस कंडीशन आप एक ह्यूमन बीइंग को सोच सकते हैं, सारा का सारा प्रोसेस अंदर ही हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है. पूरा का पूरा पीरियड जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं जिसको, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो पूरा का पूरा 9 months का पीरियड इट हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, एंड आफ्टर विच the baby is being delivered out of the body of the female after 9 months when it is completely developed. So in case of oviparous animals, the chances of survival of zygote or the embryo that is developing inside the egg is very less, because the eggs are in danger all of the time as cats or monkeys or some other animal may come and eat them. In viviparous animals, the chances of survival are more as the embryo is growing inside the body of the female, so it is very well protected and it is getting proper embryonic care. इन प्लांट्स, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्लांट्स के अंदर सब पेटल्स सेपल्स जो भी कलरफुल फ्लावर्स में आते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब फॉल ऑफ हो जाएंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब फॉल ऑफ हो जाएंगे, बस पिस्टिल रह जाएगा अटैच्ड, पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का. सो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट विल रिमेन अटैच टू द प्लांट, और उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेटल सेपल जो भी डेकोरेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं प्लांट के या फ्लावर के, वो सब शेड हो जाएंगे. नाउ जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट आई एम राइटिंग हियर विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. ओके, ovary will form fruit and ovule will be forming seeds. तो आप मैंगो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो येलो येलो पल्प खाते हैं वो तो इसकी ओवरी हो गई, और अंदर का जो सीड होता है वो ओव्यूल हो गया. ओके, नाउ दिस होल फ्रूट इज कवर्ड बाय अ पेरिकार. ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड इज कवर्ड बाय अ थिक प्रोटेक्टिव पेरिकार, जो उसकी कवरिंग होती है. नाउ सीड्स डिस्पर्स एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस. अगर आप सोचें आप मैंगो की सीड को छोड़ दें सॉइल में कुछ टाइम के लिए, it will eventually grow within 15 or 20 days. So it will germinate and grow into a new plant. So seeds disperse and germinate and form a new plant. And this leads to the continuity of the species. I hope I'm clear about this sexual reproduction. If you have any doubts, please mention them in the comments. And if you have any advice for me, I am very welcoming for the effective criticism. And if you have liked this video even for little time, then please hit the subscribe button and press the like. Okay,
and press the bell icon, because I would be uploading videos every day related to your board classes as well as the NEET preparation. Okay, thank you very much. I hope you like this video. Please do subscribe and press the like icon.